Good morning, students. Today we'll discuss about the remaining part of this chapter. A list can contain list as elements. As you know that list are the objects that can hold the object of any other type as its element. Since list are objects themselves, means कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कंटेन हो सकती है, राइट? For example, consider these four lists: LA, LB, LC, LX. These are the variable names where lists are stored. Okay, LA, LB, and LC. LC contain the value of LB list. LX contain the both other list LA and LC values. Right? Out of the four lists created above, two are the nested list. LC and LX are nested list. You can see if we print all these lists, you can see they can hold the values of other list. So you can see LX equal to 11, 22, 11 means this is the value of LB. 11, 44, 33, 11. This is the value of other list. So if you want to print LX1, LX2, LX11 and LX20 and LX22, these are the index values of the list. So you have to know what will be the index of these values. You can see जो फर्स्ट वैल्यू है LX0 वो उसकी वैल्यू 11 है. फिर LX1 10 की वैल्यू 22, LX11 की वैल्यू बनेगी 11, LX20 यानी कि जिसका इंडेक्स 2 है उसके अंदर 0 इंडेक्स है 11, 44, LX220. तो यहाँ पे डबल 2 लगाना आपको. Then another value LX3 and you can see LX221. तो ये जो 33 और 11 जो वैल्यू है LX220, LX221 और ऊपर आप देख सकते हैं LX3. ये आपको इंडेक्स देना आना चाहिए. ओके, तो इस तरह से आप अगर इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ बनेंगी, राइट? Now let's come to know working with list यानी कि list manipulation. We have to learn to access the individual elements of a list. So how we can, first of all, how we can append element to the list, or in append will come to know how we can append a single element to the list. So to append a single list we will use the append method like this. Okay, so use this append method. L dot append or bracket में item. L means the variable name of a list. For example, suppose list 1 is a variable where we store the value 10, 12, 14 and we want to append another single element like 16. So you can see lst1 dot append और bracket में 16. जब हम इसको print करेंगे तो you will find these values 10, 12, 14, 16. Okay? Appending a list of elements to a list यानी कि आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर आपको यूज़ करने हैं, अपेंड करने हैं, तो आपको एक्सटेंड मेथड का यूज़ करना है, राइट? तो जैसे आपने लिखा था एल डॉट अपेंड, अब आप लिखेंगे एल डॉट यानी कि लिस्ट वेरिएबल का नाम डॉट एक्सटेंड और लिस्ट ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, val is a variable where we store the list 17, 24, 15, 30 and we want to add two elements like 34, 27. So we will write the extend method. जब हम इसको print करेंगे you will find the value like this. You can see a example for this, how we can append or how we can extend the lists, right? So write a program that asks the user to input a number, a list to be appended to an existing list. Whether the user enter a single element or a list of numbers,
यानी कि आपको प्रोग्राम बनाना है कि आपको एक नंबर इनपुट करना है तो आपका अपेंड मेथड यूज़ होना चाहिए, अगर आपको एक से ज़्यादा करने हैं तो एक्सटेंड मेथड यूज़ होना चाहिए. सो you can see like this, myl is a variable name where we store the list. इसको आपने प्रिंट कर लिया. n इक्वल टू eval. eval आपका एक फंक्शन होता है, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर लिस्ट के अंदर एंटर करेंगे उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा. नहीं तो अगर आप eval नहीं लगाएंगे तो वो सारी वैल्यू स्ट्रिंग आएंगी, राइट. सो यूज़ द eval मेथड टू कन्वर्ट द वैल्यूज गिवन इनसाइड द लिस्ट. सो इफ़ टाइप n डबल इक्वल टू टाइप, और ये खाली ब्रैकेट आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं तो myl डॉट एक्सटेंड n, क्योंकि n वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू है. और एलिफ टाइप n डबल इक्वल टू, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एल्स इफ़ में या एल्स इफ़ कंडीशन के अंदर हमेशा डबल इक्वल टू यूज़ होता है. टाइप 1 फॉर इंटीजर इज इनपुट, तो आप अपेंड करेंगे, राइट. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट दिस प्रोग्राम. नाउ लेट्स come to know how we can insert an element in a list. To insert a single element as a specific position, we can use the insert method like this, l dot insert और इंडेक्स कॉमा आइटम, यानी कि आपको इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवानी है और उसकी वैल्यू प्रोवाइड करवानी है. यू कैन सी कंसीडर द लिस्ट वेल. वैल्यूज आर गिवन 17, 24, 15 and 30. We want to insert 2, 33. 2 means on the second index number 2. So you can see index always start from 0. 17 का जो इंडेक्स है वो 0 है, 24 का इंडेक्स 1 है. अब 33 का इंडेक्स यानी कि 2 इंडेक्स के ऊपर 33 वैल्यू आपकी इंसर्ट हो गई, राइट. इन दिस वे वी कैन इंसर्ट द वैल्यूज. नेक्स्ट थिंग इज मॉडिफाई और अपडेटिंग द एलिमेंट्स टू ए लिस्ट. अगर आप किसी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज़ द इंडेक्स वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू. फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 इक्वल टू 10, 12, 14, 16. लिस्ट 1, 2 ये आपका इंडेक्स है 2, तो 2 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आप 24 करना चाहते हैं. आप देखिए लिस्ट 1 के अंदर 10 की जो इंडेक्स है 0 है, 12 की इंडेक्स 1 है और 14 का इंडेक्स जो है वो 2 है. तो 14 की वैल्यू चेंज होकर 24 में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. जो आपकी लिस्ट अपडेट करनी है इस तरह से आप उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवाइए और उसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू नो डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, so you can use pop method. If you want the index of an element, deleting an element using its index oblique position. आप उसको इंडेक्स या पोजीशन से उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि इंडेक्स हमेशा उसकी पोजीशन से कम होता है, तो आपको पॉप मेथड का यूज़ करना है. लिस्ट वेरिएबल डॉट पॉप और इंडेक्स उसका प्रोवाइड करवाना है. सपोज well is a variable where list is stored to delete its element at index 2. आप जो 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यू विल राइट well डॉट पॉप और ब्रैकेट में 2 पास कर दीजिएगा. तो 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी आपकी वैल्यू है, सपोज आपको पता है कि 17, 24, 33 इज़ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, इट विल बी डिलीटेड. यू कैन सी. नाउ लेट्स कम टू नो डिलीटिंग एन एलिमेंट यूजिंग इट्स वैल्यू. अगर आपको उसकी वैल्यू पता है लिस्ट की और वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आपको रिमूव मेथड का यूज़ करना है, पॉप मेथड का यूज़ नहीं करना है. पॉप मेथड का यूज़ आपको तब करना है जब आप किसी वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर से आप जो है ना डिलीट करना चाहते हैं. अगर आपको वैल्यू से डिलीट करना है तो फिर आपको रिमूव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस. ओके. डिलीटिंग a sublist from a list. The del statement can be used to remove an element, individual element, or to remove all elements identified a slice. यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट आपको रिमूव करने हैं तो आपको del स्टेटमेंट का यूज़ करना है, राइट.
You can see list is a variable where 20 values are stored and we want to delete the value at index 10. तो इंडेक्स 10 के ऊपर जो वैल्यू है वो 11 है, दैट इज डिलीटेड। अगर आपको कहीं से स्टार्ट करके कहीं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक वैल्यू को डिलीट करना है तो यू हैव टू पास द इंडेक्स लाइक दिस 10:15। तो 10 से लेके 15 इंडेक्स, आप ध्यान रखिए लास्ट इंडेक्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो 10 से जो 14 इंडेक्स तक की वैल्यू है वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। यू कैन सी ओके। तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपको देनी है, इंडेक्स आपको देना है, राइट। You can see a program for this, कि write a program that displays the options for deleting elements with value, with index or with the positions etc. So you have to write this program. ये आपने मेनू क्रिएट कर दिया कि 1 डालेंगे तो आपके वैल्यू से डिलीट होएगी, 2 से आपका इंडेक्स से डिलीट होएगा और 3 से आपकी सब लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो आपको चॉइस एंटर करनी है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, CH =1 =2। तो वैल्यू से जब आप डिलीट करेंगे तो रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। इंडेक्स से जब आप डिलीट करेंगे तो पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। और जो है सब लिस्ट यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक आप डिलीट करेंगे तो इस तरह से आपको L और H कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 10 और 15 लिया था, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों वैल्यू आपने वेरिएबल के अंदर डाल दी, इसको आप 10 और 15 मान लीजिएगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैन राइट द प्रोग्राम आल्सो। नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग ए लिस्ट। ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉर्टिंग, यू नो की शॉर्ट मेथड विल बी यूज्ड। अगर आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यू हैव टू पास एन आर्गुमेंट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। यू कैन सी ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। इसको रेप्लिकेट करेगा, वैल इंटू 2 का मतलब है उसको उन वैल्यू को 2 बार शो करेगा। सो यू कैन सी एज यू कैन सी वैल इक्वल टू वैल इंटू 2 का मतलब क्या है कि वैल के अंदर, वैल लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू हैं वो 2 बार डिस्प्ले होंगी, आपकी रेप्लिकेट हो जाएंगी वो, ठीक है। अगर आप 3 करेंगे तो 3 बार रेप्लिकेट हो जाएंगी वो। और वेल डॉट शॉर्ट लिखेंगे तो इट मीन्स आपकी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और वेल डॉट शॉर्ट लिख के रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, राइट। यू कैन सी you can see another example. Write a program to calculate the mean of a given list of number. So लिस्ट में आपने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवा ली, पहले उसको उसकी लेंथ जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है। फिर एक वेरिएबल लिया मीन और सम, उनकी वैल्यू को आपने 0 रखा। फिर आपने एक फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ, यानी कि 0 से स्टार्ट करके जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर होंगे वहाँ तक वो जाएगा। और सम इक्वल टू लिस्ट आई का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सेकंड वैल्यू मिलेगी, वो आपकी ऐड होती चली जाएंगी। और मीन निकालने के लिए आपको जो टोटल लेंथ है आपके सम को टोटल लेंथ से डिवाइड करना है, तो आपका ये मीन निकल के आ जाएगा। यू कैन सी सपोज लिस्ट के अंदर आपने ये वैल्यू इनपुट कर दी, ठीक है, ये आपकी गिवन लिस्ट हो गई। और मीन निकालने के लिए इन सब को पहले ऐड करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है, राइट। यू कैन सी अनदर प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट। आपको कोई भी एलिमेंट आपको सर्च करना है तो ठीक इसी तरह से आपको इफ़ कंडीशन लगानी है, राइट। और वो एलिमेंट आपका सर्च हो जाएगा। अगर आपका वो मिल जाती है वैल्यू तो फाउंड एट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स का नंबर होगा वो आ जाएगा और वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी वहाँ पर,
नहीं तो प्रिंट नोट फाउंड, ये आपका मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, आपने लिस्ट एंटर की, एंटर लिस्ट एलिमेंट टू बी सर्च, सपोज आपको -1 या कोई भी -11 की वैल्यू या कोई भी दूसरी वैल्यू आपको सर्च करनी है, तो इट विल सर्च कि इस इंडेक्स के ऊपर ही आपकी वैल्यू है। यू कैन सी अनदर एग्जांपल कि आपको सपोज -22 की वैल्यू सर्च करनी है, तो ये बताएगा इसके अंदर अवेलेबल नहीं, क्योंकि 22 वैल्यू है लेकिन -22 नहीं है, राइट। You can see another program, write a program to check if the maximum element of the list lies in the first half of the list or second half. So you can see, उसको आपने 2 से डिवाइड करके 2 आप बना लिए। So in this way you can find. You can see another program, write a program to input 2 lists and display the maximum element from the elements of both the list combined along with its index. So आपने 2 लिस्ट की वैल्यू एंटर कर दी, राइट। max1 max2 2 वेरिएबल लिए, अगर वो वैल्यू से बड़ी है या उसके इक्वल है तो फिर आपको ये वाला मैसेज प्रिंट करना है, द मैक्सिमम वैल्यू इज इन द लिस्ट एट इंडेक्स list1 डॉट इंडेक्स, और वो वेरिएबल पास करना है। नहीं तो एल्स mx2 द मैक्सिमम वैल्यू इज इन द list2 एट इंडेक्स list2 डॉट इंडेक्स, और वो वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। जैसे आपने ये 2 लिस्ट प्रोवाइड की, सो यू कैन सी 34 इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि list2 के अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर अवेलेबल है। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। I hope all things are clear to you. Okay, thank you.